Good morning, class 7th. This is your social science class, and today we will learn remaining part of lesson 1 of civics. तो बच्चों, civics में हमारा lesson 1 equality चल रहा है, तो हम उसी के आगे से continue करेंगे. So take out page number 9 and see the heading Equality in Indian Democracy. It means भारतीय लोकतंत्र में समानता. The Indian Constitution recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male or female persons from all castes, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. देखो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है संविधान. तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को एक समान मानता है, लेकिन इसका अर्थ है कि देश में व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म व शैक्षिक हो या नहीं हो, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे. लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता पूरी तरह से खत्म हो गई है. यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है. मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको सबकी बातों को महत्व दिया जाएगा. While earlier, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 10. No law exists to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. It means जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं. This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. What this means? It is that every person from the president of the country of Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether they are female or male. Third, every person has access to all public places, including playground, hotel, shop, and markets. All persons can use publicly available wells, roads, and bathing ghats. Fourth, untouchability has been abolished. It means समानता को स्थापित रूप से चलाने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं. उनमें से कुछ इस प्रकार हैं. फर्स्ट तो यह है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है. इसका तात्पर्य मतलब इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना पड़ेगा. सेकंड, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता. एंड थर्ड, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि शामिल हैं. सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं. एंड फोर्थ, अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत को खत्म कर दिया गया. The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first, thought laws, and second, thought government programs or schemes to help disadvantaged communities. It means शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया. फर्स्ट, कानून के द्वारा, और सेकंड, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा समाज की मदद करके.
There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has also, अब पेज नंबर 11 पे देखेंगे, set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. इसका मतलब भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन ग्रुप्स जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को पास्ट मीन्स अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो सके। One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001, the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. This program has had many positive effects. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. This program has also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places women have been employed to cook the meal. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often came to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. It means इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। मिड डे मील का मतलब होता है मध्याह्न, मतलब दोपहर में भोजन की व्यवस्था करवाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह भोजन भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 महीने के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम के काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटकर नहीं आते थे, लेकिन अब जब वे स्कूल में दोपहर का भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। तथा वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर जाना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के साथ बच्चे पढ़ने के साथ साथ भोजन करते थे और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया। दोपहर का भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की। जो बच्चे पहले खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे, तो इस चीज़ में भी काफ़ी सुधार हुआ। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment
and attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. These children are forced into unequal situation in which their dignity is not. Turn the page number 12. Respected. This is because people refuse to think of them as equal even thought the law requires it. It means भले ही गवर्नमेंट कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दोपहर का भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति मतलब अटेंडेंस को तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढाला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. It means इसका मेन रीज़न यह भी है कि लोगों के दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। मतलब सिर्फ कानून बदलने से या फिर यह कहने से कि हम सब एक समान हैं, इससे इक्वलिटी में परिवर्तन नहीं आता। इसके लिए लोगों की सोच का बदलना भी बहुत ज़रूरी है। भले ही लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। आज अगर वर्तमान में देखा जाए तो लोगों की सोच को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कम नहीं है और सभी को एक समान सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक संघर्ष है जिसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना पड़ता है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। इट मीन्स अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अच्छा बच्चों, ये पैराग्राफ पढ़ने के पहले आप मुझे ये बताओ कि इस पेज पे आपको पेज नंबर 12 पे एक डायग्राम दिख रहा है, एक मेन का मतलब एक आदमी का डायग्राम दिख रहा है, तो आप बता सकते हो कि ये कौन है? ध्यान से देखो बुक में, यहाँ नीचे इनका नाम भी लिखा है, B.R. अम्बेडकर। इट मीन्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप सभी ने इनके बारे में तो सुना ही होगा। जब ये छोटे थे तो ये भी एक्चुअली एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे, तो बचपन से ही इनके साथ भी बहुत भेदभाव हुआ है। मतलब जब ये स्कूल जाते थे तो उनके साथ छुआछूत का बहुत वो करते थे, मतलब इन्हें अलग बिठाते थे और जो अदर स्टूडेंट्स होते थे वो इनसे बात भी नहीं करते थे, ना इनके पास बैठते थे और इनके साथ ना कभी बैठ के खाना खाते थे। और प्रिंसिपल और टीचर्स द्वारा इनसे भी स्कूल की सफाई करवाई जाती थी। फिर बच्चों इन्होंने बचपन में ही यह ठान लिया था, यह निश्चय कर लिया कि बड़े होकर ये बहुत बड़े आदमी बनेंगे, इस लायक बनेंगे कि कानून द्वारा जाति धर्म के नाम पर ये जो भेदभाव हो रहा है इसे बिल्कुल मिटा सकें। और फिर बड़े होकर इन्होंने ऐसा
किया भी। इनफैक्ट जो हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं, मतलब संविधान बने हैं, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही लिखे हैं। क्लियर? तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the sky issue around which communities struggle. So, for example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in the late 1950 to push for equal rights for African Americans. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. It means शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो सच यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्र देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष चले आ रहे हैं। उदाहरण के लिए एक संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे और वे आज भी अपने आप को असमान मानते थे, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें असमान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था और जब कोई वाइट मैन मतलब गोरा आदमी वहाँ बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। रोजा पार्क्स was an African American woman. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that they started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as the Civil Rights Movement. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin. It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. It means यह स्टोरी एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला रोजा पार्क की थी। 1 दिसंबर 1955 को जब वह दिन भर काम करके थक गई थी और घर जाने के लिए बस में चढ़ी और अपनी सीट पर बैठी हुई थी और एक गोरे व्यक्ति के आने पर उन्होंने वह सीट उस व्यक्ति को देने से मना कर दिया और उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन मतलब सिविल राइट्स मूवमेंट का मतलब होता है नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया गया। फिर 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने जो भी ये धर्म, जाति और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का विरोध किया
इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बाद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए ही समर्थ रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी मतलब प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी प्राइवेट स्कूलों जैसा ही ऊंचा है और अच्छा है। एंड नाउ टेक आउट पेज नंबर 14। Excerpt from Article 15 of the Indian Constitution. It means excerpt means अनुच्छेद। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth. It means धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। First, the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. It means राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to a. access to shops, public restaurant, hotel and place of public entertainment, and second, the use of wells, tanks, bathing ghat, road and place of public resort maintained wholly or party out of state funds or dedicated to the use of the general public. It means कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों एवं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश और साधारण जनता के प्रयोग के लिए कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का उपयोग किसी भी नियोग्यता, दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब सभी को इनका एक समान प्रयोग करने की परमिशन दी जाएगी। नेक्स्ट, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र की चुनौती। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. It means किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय देश नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्ष रखते हैं। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो बच्चों, आपका सिविक्स का फर्स्ट लेसन ऑन इक्वलिटी यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम कल इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ये देखो बच्चों, ये है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। तो हम कल यह क्वेश्चन आंसर्स तो करेंगे ही, साथ में जो लेसन के बीच बीच में जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, फॉर एग्जांपल मिड डे मील और एक दो क्वेश्चंस और चैप्टर के बीच में से भी लेकर करेंगे। क्लियर?
Have a nice day, students.